So let's start the class. Is the screen is visible to you all or not? Yes, class. Am I audible? Anant, am I audible? Yes, sir. Okay. And screen is visible to you all or not? Is the screen visible? Divya, No, sir. अब चेक कीजिए. स्क्रीन विजिबल है. अनंत, कैसा हो? कसक, कुशाग्र? नहीं है सर. नहीं है. समय हूँ. Check it now. I hope it's visible now. Class 11th. Yes or no? So we were discussing the question from this miscellaneous exercise of chapter 12 in the previous class. So we have done this question 1, question 2, question 3. Now let's start the class with question number 4. So look at this question 4. सर आपकी स्क्रीन एक ही जगह पे पॉज है. एक ही जगह पे pause है. Okay, just a minute. Let me connect with. There is some problem with the Wi-Fi. Just give me a minute. Check it now. I hope it's visible clearly now. Yes, sir. Okay. So Divya, could you please read this question on the screen? Find the coordinates of a point on y-axis which are at distance of 5 under root 2 from the point P, bracket 3, comma minus 2, comma 5. Okay. Anant, if a point is lying on y-axis, what is its x coordinate and y coordinate and z coordinate? So if point is lying on y-axis, Its then x coordinate is equal to yes, sir. 0. So 0, 0, and z will also be equal to 0. And y is something. Y may be anything. So it would be 0, y 0. Y may be any number if a point is lying on y-axis. So if a point is lying on Yes. y-axis, it means its x coordinate and z coordinate is 0, right?
Now this is a point Yes, yes. A, and there is some another point P. There is some another point P. The coordinate of point P is this given, and the distance between this A and P is given. The distance from A to P, it is given tan 5 root 5 root 2. Okay. So let us apply the distance formula. AP equal to, the distance formula is, if this is x1, y1 and z1, and this is x2, y2, z2. Apply the distance formula on your notebook and try to find it. Kasak Chauhan, could you please tell me the distance formula? Kasak, am I audible to you? Yes, sir. Distance, Then x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. yes, absolutely right. Put the values on your notebook. Put the values in your notebook and find the value of y. Try to find it. Try to find it by yourself. I think you have got an equation like this, a quadratic equation by solving it. एक quadratic equation आप लोगों को मिली होगी. And this is the quadratic equation. Now we have to solve this quadratic equation by using the splitting the middle term method. Kusagra, tell me that two numbers whose after subtraction हमें 4 मिल जाए and after multiplication we get 12. Kusagra. Akshay Saxena also joined. Yes, sir. Tell me the two numbers which I need to fill here in between this. जिनको माइनस करके 4 आए और मल्टीप्लाई करके 12 आए. So 6 and 2. Yeah, Utkarsh is also giving the right answer. 6 minus 2. So solve it. So y is minus 6 and y is equal to 2. So what is the point required point is? So point is it is 0 comma minus 6 comma 0 or 0 comma 2 comma 0. So this is the answer. I hope this question is clear to you. Anyone could you please match the answer? Yes. Answer match करिए. Who is having book along with you? सही है बेटा दिव्या. Yes, sir. Okay. Akshay Saxena, could you please read this question on the screen? Akshay Saxena.
Are you going to read this question or not? So may I? Yes, Kusagra. A point R with x coordinate 4 lies on the line segment joining the points P 2, minus 3, 4 and Q 8, 0, 10. Find the coordinates of the point R. So there is a point P. यहाँ पे point P given है. If you look at this point P is, so this is x1, this is y1, and this is z1. Point Q is given. This is x2, this is y2, and this is z2. And this is the point R, whose x coordinate is given, but y and z coordinate is not given. So we are going to use the section formula here. हम लोग यहाँ पे section formula लगाने वाले हैं. यहाँ पे ratio मैंने let कर ली m ratio n. So what is the value of x according to the section formula, Divya? दिव्या, सेक्शन फॉर्मूला से x की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज x? टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फॉर दिस पॉइंट हु मेक द सेक्शन. कसक चौहान. Yes, sir. x की वैल्यू बताएंगे सेक्शन फॉर्मूला से, यस और नो? यस और नो? Sir, 5. नहीं, आई एम आस्किंग द फॉर्मूला. x इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला. हाउ टू फाइंड x? Sir, I don't know. ओके. उत्कर्ष शर्मा. उत्कर्ष शर्मा, एम आई ऑडिबल टू यू? अच्छा, आपका माइक वर्क नहीं कर रहा है. अनंत राजकिशन. Yes, sir. x की वैल्यू बताइए. एंड अक्षय सक्सेना, यू कुड यू प्लीज Sir, sir, mx2 plus nx1 upon m plus n value formula solve करेंगे. x1 upon m x1 upon m plus n. yes, this is the formula. And अक्षय सक्सेना, could you please text me the reason on my number why you are not responding in the class? Otherwise I need to talk. x इक्वल टू mx2 plus nx1 upon m plus n. वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे. What is x given here? 4. What is m? I don't know. What is x1? 2. What is n? x2 I need to put here. x2 is 8. What is n? I don't know. What is x1? 2. नीचे m plus n. तो यहां से आपको रेशियो फाइंड होगी. आप रेशियो फाइंड करिए यहां से. व्हाट इज द रेशियो? आई किसी की रेशियो फाइंड किया? इसमें आप रेशियो फाइंड करके मुझे बताइए इसका. पहले आप बताइए. दिव्या, अनंत बताएंगे. कुशाग्र, कसक, उत्कर्ष, अक्षय सक्सेना. फाइंड द रेशियो ऑफ दिस क्वेश्चन and take a click and send it to me. I hope you all have notebook along with you. Yes, sir. एक क्लिक करके मुझे भेजो, देखें कोई सो तो नहीं रहा बच्चा.
दिव्या सही किया है आपने, इट्स 2/4। आप इसको 1/2 भी लिख सकती हैं। दिव्या इसको आप 1/2 भी लिख सकती हैं। ठीक है, तो रेशियो 1/2 आ गया। अब कुशाग्र का सही आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पे y की और z की वैल्यू निकालनी है। और बच्चे भी मुझे सेंड करो, मैं देखना चाहता हूँ आप कर रहे हैं। अनंत सही आ रहा है आपका। अब इसमें y की और z की वैल्यू निकालनी है, तो हमें x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, तो इसको यूज करके हमने क्या कर दिया यहाँ पे, इसको यूज करके हमने रेशियो फाइंड आउट कर लिया है। अब इफ आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो कसक कुड यू प्लीज टेल मी द फॉर्मूला फॉर y। कसक सही आ रही है रेशियो। कसक y का फॉर्मूला बता सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से? Sir, my2 plus my1 upon m plus n. यस राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब सही आया, आपको पता लग गया अब क्या फॉर्मूला होता है। अब आप इसमें यहां से वैल्यूज Yes, फाइंड sir. कीजिए। m हमारे पास 1 है, वैल्यूज पुट करिए और फाइंड कीजिए सभी। m को रखेंगे 1, y2 इज 0, n इज 2, y1 इज -3। ये सारी वैल्यूज मैं ऊपर से ले रहा हूं, यहाँ पे जो दिखा हुआ है y2, y1 और m और n हमने अभी निकाला है, और ये 1 + 2। अब आप y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। y आएगा -6/3 इक्वल टू -2। तो हमें y चाहिए था। अब इसी तरह से आप z की वैल्यू फाइंड करके मुझे क्लिक करके भेजो एक फोटो। हेलो जी सर, बताइए। हाँ कर लीजिए सर। ये एचआर के पास है, एलजी सोसाइटी। हाँ जी, B9 नंबर है, वहां जाएंगे तो आप मैडम मिलेंगी, वो आपको कार की चाबी दे देंगे। किस समय तक पहुंचेंगे आप? अच्छा B9, B फॉर बम्बई, B9 बता दीजिएगा। ओके सर। सर मैंने भेज दी। हाँ, जेड की वैल्यू निकाल के। तो अनंत का आया 10, 8, 10 into 1, 2 into 8, 3 सही आ रही है अनंत। सो ओके सर। पॉइंट आ गया, पॉइंट फाइंड हो गया। I need all of response of all of you, those who are attending the class. Akshay Saxena, you have to send me the reason. Maybe some problem. Utkarsh Sharma, Sir, send it. हाँ मुझे मिल जा रहा है, सब सेंड कर रही है। दिव्या का भी आ गया था लास्ट वाला। उत्कर्ष, I think you do not have my number. Take this number and फोटो उसका भेजो एक क्लिक करके। 2 - 2 और 6 आंसर तो सही आ रहा है। उत्कर्ष, दिस इज माय नंबर, सेव इट इन योर फोन एंड सेंड मी अ फोटो ऑफ योर नोटबुक। कसक बिल्कुल सही है। ओके, तो जेड की वैल्यू आप सभी लोगों की आ रही है, दिव्या का नहीं आया अभी। दिव्या, जेड की वैल्यू 6 आ रही है। बाय यूजिंग द फॉर्मूला जेड इज इक्वल टू mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। तो आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, ये आया 18/3, तो इट कम्स आउट टू बी 6। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। शुड वी मूव टू Yes, द sir. नेक्स्ट क्वेश्चन?
हाँ दिव्या ने भेजा है। हाँ दिव्या सही आ रही है बेटा आपका आंसर। कुशाग्र आपका भी बिल्कुल ठीक आ रहा है। उत्कर्ष ने भी फाइंड कर लिया। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दयाम अली हैज जॉइन नाउ। अब तो पिक्चर ही खत्म होने वाली है दयाम अली, लेट हो गए आप थोड़ा सा। सर किसी जरूरी काम में बिजी होंगे आप, मैं समझ सकता हूँ, पर आप आए। यस सर, थोड़ा बिजी था सर। अपने बिजी शेड्यूल में से आपने 4 मिनट निकाली क्लास करने की बची हुई है। ओके दयाम अली, कुड यू प्लीज रीड दिस क्वेश्चन रिटन ऑन द स्क्रीन। If A and B be the points 3, 4, 5 and -3, -1, 3, -7 respectively, find the equation of the set of points P such that PA square plus PB square is equals to K square, where K is a constant. ओके तो यहाँ पे कुछ कहानी इस तरह से है जो दयाम अली जी ने बताई है। अटेंडेंस Sir? में, हाँ जी बताइए। Sir, can you give me my attendance, please? हाँ अटेंडेंस आई हैव मार्क, डोंट वरी। अभी मैंने मार्क कर दिया अटेंडेंस। Thank you very much, sir. देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखो Thank you, sir. दिख गई सर। दिख गई ना यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे ये। Yes sir, दिख गई सर। अब यहाँ पे देखिएगा, इस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। ए बी पॉइंट गिवन है 3, 4, 5, -1, 3, -7। एक पॉइंट पी है, पता नहीं क्या है ये, क्यों है ये, क्या है ये, एक्स वाई जेड इसको ले लेते हैं, हमें नहीं पता। एक रिलेशन यहाँ पे गिवन है, इफ यू लुक एट दिस रिलेशन पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। के कांस्टेंट है। एक इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, पी ए स्क्वायर निकालेंगे पहले। पी ए स्क्वायर क्या आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से। अनंत राजकिशन, अनंत राजकिशन जी पी ए स्क्वायर बताइए डिस्टेंस हाँ, सर। फॉर्मूला से। x minus 3 square हाँ एक सेकेंड। plus एक्स माइनस 3 स्क्वायर, यस गुड, प्लस y minus 4 square वाई माइनस 4 स्क्वायर plus z minus 5 square. जेड माइनस 5 स्क्वायर। अब ये इसने पीए का स्क्वायर दे रखा है और मैंने पीए फाइंड किया, तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा, अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। रूट और हट फिर जाएगा। अब आप यहाँ पे दिव्या मुझे बताइए व्हाट इज पीबी बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। दिव्या कुमारी झा। Sir, x plus 3 whole square एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, plus minus 2 whole square वाई माइनस 3 होल स्क्वायर, plus z plus 7 whole square. यस एब्सोल्युटली राइट, एंड इट इज गिवन इज इक्वल टू के स्क्वायर, के इक्वल गिवन है। ठीक है, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, एक्स माइनस 3 एज इट इज लिख रहा हूँ, एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 स्क्वायर प्लस जेड माइनस 5 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर प्लस जेड प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू के की स्क्वायर। अब बस इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। ये मुझे नहीं लगता मुश्किल काम है, थोड़ा बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा बट दैट इज आंसर। इसको ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6x वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 टू जा 8y जेड स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10z एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y जेड स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 प्लस 14z इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है एक्स स्क्वायर से ऐड होगी तो क्या बन जाएगी 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाली टर्म वाई स्क्वायर से ऐड होगी तो क्या बन जाएगी 2y स्क्वायर। सिमिलरली जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विल बिकम 2z स्क्वायर। अब x वाली टर्म देखिए, ये माइनस 6x है, यहाँ पे प्लस का 2x है, तो माइनस 6x प्लस 2x माइनस का 4x, तो ये हो गई। अब y वाली टर्म देखिए, ये 8y है, कहाँ पे है y 6y है, 8 प्लस 16 14, z कहाँ है z माइनस 10z
14z प्लस का 4z। अब बचे कौन कांस्टेंट टर्म्स, ये बचा 9, ये बचा 9, ये बचा 16, 25, 1, 49। इनको ऐड कर लेते हैं। 9, 16, 25, 1, 9 और 49। बताइए कोई मुझे ऐड करके क्या आएगा? कर सकते हैं ऐड? पूरा भर दिया करो सर, पूरा भर दिया करो। हाँ हाँ सही है, थैंक यू। 100 आएगा सर। 100 आएगा। Anyone, could you please match the answer for this question? दिव्या आंसर मैच करोगे बेटा इसका? 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? अनंत आंसर मैच करेंगे। दिव्या, एनीवन हैविंग बुक अलोंग विद यू, could you please match the answer? Sir, x square plus y square plus z square minus 2x minus 7y plus z is equal to k square minus 109 divided by 2. सर 109 आएगा, सॉरी सर 9 लिखा नहीं है। 109 आएगा। और फिर यहाँ पे हाँ, के स्क्वायर सर, ऊपर 9 लिखा था। ले लिया ना, के स्क्वायर। तो क्या बताया दिव्या, इसको मैच करना है स्क्रीन पे, यही था क्या 109। इसको 109 को अगर इधर ले लेता हूँ और डिवाइडेड बाय 2, नहीं 109 तो कॉमन इधर आएगा एंड डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा जो 2 कॉमन लिया था। दिव्या, कुड यू प्लीज मैच है वंस अगेन? Yes, sir. सही है बेटा। ये आप जेड बोल रहे थे इसको, इट इज जेड और 2z इन द आंसर? Yes, sir, 2z. 2z. Okay, so this is the answer for this question. So that's all for today. Thank you all for joining. Rest of the thing we will discuss in the next class. And this is all about this exercise, and this is all about this chapter. I hope you understood the chapter, and do this chapter in your fair notebook, each and every question from NCERT, exercise and examples also. And if you have any doubt in any question, so tick it, mark it and ask me in the next class. So thank you all for joining. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Oh.